Okay, good morning, Diksha. Good morning, class. In the previous class, I have told about permutations, where we have talked about permutation as well as R permutations. Okay, we have taken some examples also. In continuation to that, here we are going to consider some more problems. Let us say this part we have done. Okay, this example we have done. Find the number of permutations of 6 objects, that is A, B, C, D, E, F, taken 3 at a time. And this problem can also be stated as we have to find out the number of ways of 3-letter words using 6 letters without repetition. And the solution for this we have discussed earlier. Okay, where the solution part for this consisting of 6 P3, and that will be factorial 6 upon factorial 6 minus 3. Okay, so up to here we have discussed in the previous class. Okay, now moving to next, here we have, this is the way. Okay, to solve this we represent 3-letter words by following 3 positions. Okay, for first position we have 6 options, for second position we have 5 options, for third position we have 4 options. Therefore it will be 6 into 5 into 3, because we have to consider 3-letter words at a time. So that's why we have to apply product rule, and therefore 6 into 5 into 4, and that is 120. Okay, so this can be done by formula also. Out of 6 objects taken 3 at a time, the number of possible ordered arrangement will be 6p3, and that is 120. Okay, so after this we are going to talk about permutations with repetition. Okay, whenever we are saying permutations with repetition, it means we have to allow for the elements to be considered any number of time. Okay, here we are saying frequently we want to know the number of permutations of a multi-set, that is a set of objects some of which are alike. We will let this one. Now denote the number of permutations of n objects of which n1 are alike, n2 are alike, n are alike, and so on. Then what is the general formula? So the general formula will be n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into so on up to nr factorial. ओके, ये फॉर्मूला इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसका जो ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, दैट इज फॉर we have to consider for n objects, out of which n1 are of one type, n2 are of second type, and so on, n are of other type. So in that case the number of possible arrangements will be n factorial divided by this one. Okay, so this thing is called to be as permutation with repetition. Got that? Let us say this example. Suppose we have to find the number of 7-letter words that can be formed using the letters of word benzene. Okay. Yes, anyone? Can you tell me the answer?
Yes, any one of you, can you tell me the answer? What is the number of 7-letter words that can be formed using the letters of the word benzene? ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप अपने आंसर्स मुझे बताओ। उपेंद्र। सर 7 raised to power 7। 7 raised to power 7. Okay, why we are doing so? Yes, Upendra, what is the logic for this? Okay, Subhansi. Sir, 7 factorial if repetition is not allowed. Okay, And 7 is to 7 तब होगा अगर repetition allowed है तो. okay. Tushar. So 7 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. And what is the reason? सर दो नंबर्स जो हैं सर वो अलाइक हैं सर बेंजीन में सर, और सर 2 और 3 दोनों अलाइक, मतलब ई और एन दोनों अलाइक है सर। तो वो ई जो है वो ई जो बेंजीन सर ई जो है वो सर 3 बार आ रहा है, एन जो है वो 2 बार आ रहा है। Yes. Letter E appears for 3 times and letter N appears for 2 times. यस सर। Okay. Anyone else? Tushar. यस सर। अच्छा, अभी तो आपसे बात हो गई। यस सर। Okay. Anyone else? ओके, मैंने अभी आपको बताया। ओके, चलो विशाल से भी पूछ लेते हैं। विशाल, यस यू कैन से। ओके, यू आर नॉट देयर। यस, इन दिस प्रॉब्लम अभी मैंने आपको बताया परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन। whenever we are saying permutations with repetition, okay, so अगर ये लेटर्स जो हैं, यहाँ पे हमने जो लेटर्स यूज किए हैं, अगर ये लेटर्स जो हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे बी ई एन जेड ई एन ई, ये जो हैं टोटल 7 लेटर्स हैं, ठीक है। इन 7 में से जो ई है वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है और जो एन है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। ई इज रिपीटिंग फॉर 3 टाइम एंड एन इज रिपीटिंग फॉर 2 टाइम, ओके। अगर ये सभी डिस्टिंक्ट होते तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट होता है इसका 7 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था whenever n becomes r, whenever n equals to r, npr is equals to n raised to n फैक्टोरियल, ठीक है। तो उस केस में n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल एंड सॉरी n माइनस n फैक्टोरियल एंड दैट इज n फैक्टोरियल इटसेल्फ, क्योंकि r की वैल्यू भी n हो गई, बिकॉज वी आर टेकिंग 7 लेटर्स एट ए टाइम आउट ऑफ 7 अल्फाबेट्स, ठीक है। तो therefore in that case the number of possible arrangements will be 7 फैक्टोरियल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और जब भी हमें परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन देखना होता है जिसमें से कि एक ऑब्जेक्ट जो है n1 टाइम अपीयर हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है n2 टाइम अपीयर हो रहा है, ऐसे ही जो rth ऑब्जेक्ट है nr, वो nr टाइम अपीयर हो रहा है, तो उस केस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, okay. The answer for this problem statement will be 7 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial, क्योंकि e जो है वो 2 बार 3 बार आ रहा है और n जो है वो
2 टाइम्स अपीयर हो रहा है. ओके, दिस वन. Got this? Because in this one we are asking for the number of permutations of 7 objects, of which 3 are alike and 2 are alike. ठीक है? Because there are 3 E's and 2 N's. Suvansi, let me unmute you. Yes, Suvansi. सर क्या हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे आपने 7 फैक्टोरियल जिसमें हम लोग फैक्टोरियल यूज करते हैं उसके लिए आपने ब्लैंक स्पेस पे हम लोग को रख के दिखाया कि फर्स्ट को फिल करने के लिए हमारे पास इतनी होंगी, नेक्स्ट वाले में 1 कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में 1 कम हो जाएगा. तो फैक्टोरियल वाला पॉइंट वहां से क्लियर हो गया. बिल्कुल. ये भी क्लियर कर सकते हैं कि हम लोग क्यों 2 अब फैक्टोरियल देखो 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 देखो, मैं इसको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि ये जो हमने ई पिक किया, जो हम ई पिक कर रहे हैं या एन पिक कर रहे हैं, तो वो जो 3 ई हैं वो किसी भी पोजीशन पे आए, उनका पोजीशन चेंज करने से अल्फाबेट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा. यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ये पहला वाला ई है या दूसरा वाला ई है या तीसरा वाला ई है. गॉट दैट? बिकॉज द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, अगर लेटर चेंज होता है तब आपका वर्ड चेंज होता है, अगर लेटर सेम है तो उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, गॉट दैट? तो इसलिए हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 ई हैं उसको प्लेस करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल. ऐसे ही जो 2 ई हैं उसको प्लेस करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. Suvansi, is it clear? जो नंबर ऑफ ईज हैं उनका प्लेस मैटर नहीं करता. और मैंने आपको बताया था जब भी प्लेस मैटर नहीं करता तो उसमें हम क्या करेंगे? जो हमने 7 फैक्टोरियल कब लिया? जब सभी लेटर्स जो हैं अलग अलग होते. लेकिन जो ई है वो 3 ई जो हैं वो अलग नहीं है, वो सेम है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि उन तीनों ई में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू ई ही है, वेदर यू आर टेकिंग दिस वन और यू आर टेकिंग दिस वन और यू आर टेकिंग दिस वन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इसी तरीके से ये जो n है, आप ये वाला n रख रहे हो या ये वाला n रख रहे हो, आप इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई इन दो n को प्लेस करने के टोटल कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल. ठीक है, एंड देयरफॉर वी हैव टू डिवाइड इट बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लो. ओके, so we can take some more. Here we have, before moving further, there is one more terminology that we are using, that is called to be as ordered samples. Okay, so what is this? So here we are saying many problems are concerned with choosing an element from a set S with n elements. Now when we choose one element after another, say r times, we call the choice an ordered sample of size r. Okay, and we consider 2 cases. पहला केस है सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा केस है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, so here the element is replaced in the set S before the next element is chosen. Thus each time there are n ways to choose an element. Got the point?
जब भी हमें नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे सेट एस में। तो इसलिए हर बार हमारे पास n नंबर ऑफ वेज अवेलेबल होंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए। एंड ड्यू टू प्रोडक्ट रूल the number of possible ways for such samples will be what, n into n into n into n, r टाइम हमें r आइटम सेलेक्ट करना है तो r टाइम रिपीट होगा एंड दैट इज n रेज टू पावर r। तो यही मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया था कि अगर हम रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट अलाउ कर दें, ठीक है, जैसे हमें 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, ओके, तो और हम रिपीटिशन अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विथ रिपीटिशन अलाउड? अगर किसी सेट में जो है हमारे पास 1 से लेके 9 तक टोटल 9 वैल्यूज हैं, ठीक है, और हमें वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ 3 डिजिट वैल्यूज विथ रिपीटिशन अलाउड। तो 3 डिजिट के हम कितने नंबर बना सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, ठीक है, तो 3 डिजिट की बात कर रहे हैं हम, तो पहले पोजीशन के लिए भी हमारे पास 9 पॉसिबिलिटी होंगी, 1 से लेकर 9 तक सभी एलिमेंट आ सकते हैं। अब ये जो रिप्लेसमेंट बोला गया, रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जो भी सेलेक्ट किया था 1 से लेकर 9 तक पहले पोजीशन के लिए, उसको वापस से हम सेट में रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे पोजीशन पे भी आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, तीसरे पोजीशन पे भी फॉर एग्जांपल आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। दैट मीन्स अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये 3 पोजीशंस हैं। पहले पोजीशन के लिए 9 पॉसिबिलिटी हो गई, 1 से लेकर 9 तक कोई भी एलिमेंट आ सकता है, दूसरे पोजीशन के लिए भी 9 पॉसिबिलिटी हो गई, और तीसरे पोजीशन के लिए भी 9 पॉसिबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि हम रिपीटिशन को अलाउ कर रहे हैं। जैसे नंबर हमारा 111 भी हो सकता है, 112 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपीटिशन अलाउड, and therefore the total possible ways will be 9 into 9 into 9। यहाँ पे n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 3 है, because we are talking about the number of 3 digit integers out of the values 1 to 9। okay, so total possible numbers will be 9 into 9 into 9, and that is whatever the value you are getting, ठीक है, that is 9 raised to power 3। So this is the meaning of sampling with replacement। Yes तुषार, हाँ तुषार, हेलो हाँ बोलो तुषार। सर 9 फैक्टोरियल होना चाहिए था ना सर? देखो 9 सर लाइक, फैक्टोरियल मैंने आपको बोला क्या, 3 डिजिट, यस सर, तो 9 फैक्टोरियल तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल कह रहा हूँ मैं। हाउ दिस इज 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल? सर एक पहले सर पहले पोजीशन के लिए आप 9 में से कोई एक वैल्यू ही तो सेलेक्ट करोगे। यस सर, 9 में से एक वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके होंगे? 9 फैक्टोरियल यस सर, या 9? आपके पास 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है, कितने तरीके होंगे? सर 9, ओनली 9 ना। ओके, 9 फैक्टोरियल तो तब होता जब हमें 9 नंबर्स को 9 पोजीशन पे प्लेस करना होता, तब 9 फैक्टोरियल होता कि पहले पोजीशन पे हमारे पास 9 ऑप्शन होते, दूसरे पोजीशन पे हमारे पास 8 ऑप्शन होंगे, तीसरे पोजीशन पे हमारे पास 7 ऑप्शन होंगे, एंड सो ऑन। गॉट दैट? लेकिन यहाँ पे हमें एक पोजीशन पे 9 में से एक वैल्यू पुट करनी है, तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, 9 हो गई ना। 9 हो गई, यस ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर n रेज़ टू पावर r। ओके, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि हम रिपीटिशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी एक आइटम एक बार सेलेक्ट हो गया तो वो दोबारा रिप्लेस नहीं होगा, वो अब दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस विल बी इक्वल्स टू एन पी आर एंड दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हियर द एलिमेंट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द सेट एस बिफोर द नेक्स्ट एलिमेंट इज chosen, and therefore there is no repetition in the ordered sample, and such a sample is simply an R permutation, and therefore the number of such sample will be this one. ठीक है, तो अगर हम रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं, सैम्पलिंग में रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं, सैम्पलिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट अलाउ कर रहे हैं तो n रेज़ टू पावर r होगा, अगर रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं तो वो सिंपली आर परम्यूटेशन होगा, यानी कि NPR होगा। ठीक है, दूसरा अगर हमने रिपीटिशन अलाउ किया एलिमेंट्स का तो उस केस में जो होगा एलाइक वाला जो केस लिया था हमने, तो वो एग्जांपल हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं। लेट अस से दिस वन, जो मैं ये टर्म बोल रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, तो दिस विल बी मोर क्लियर बाय दिस एग्जांपल। सपोज 3 cards are chosen one after the other from a 52 card deck. Find the number of ways this can be done with replacement and without replacement. ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने एक कार्ड को पिक किया और जब आप दूसरा सेलेक्ट करने जाओगे तो वापस से आप उस कार्ड को उस डेक में इंसर्ट कर दोगे, तब आप सेलेक्ट करोगे। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने एक कार्ड को पिक कर लिया तो अगली बार जब आप पिक करोगे तो आपके पास 51 कार्ड ही रहेंगे। और विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हर बार आपको पिक करने के टाइम पे आपके पास क्या होगा, 52 कार्ड ही रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर ए पार्ट। यस, वेरी सिंपल, क्योंकि हमें 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, पहले कार्ड के लिए भी 52 होगा, दूसरे कार्ड के लिए 52 होगा और तीसरे कार्ड के लिए भी 52 होगा, क्योंकि हम विथ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि हर बार हम कार्ड को वापस डेक में डाल दे रहे हैं अगला सेलेक्ट करने से पहले। ठीक है, तो दैट्स वाई द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट विल बी 52 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 52 इंटू 52 इंटू 53, n रेज़ टू पावर r, n की वैल्यू 52 है, r की वैल्यू 3 है, तो 52 रेज़ टू पावर 3। सेकेंड पार्ट है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने एक कार्ड जब पिक कर लिया तो अगली बार आपके पास 51 कार्ड बचेंगे सेलेक्ट करने के लिए। फिर जब तीसरी बार आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास केवल 50 कार्ड्स होंगे, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 52 इंटू 51 इंटू 50। ओके, तो देयरफॉर द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट विल बी दिस वन। ओके, तो दिस इज द आंसर, गॉट दैट। तो पहले पार्ट के लिए आंसर हो गया 52 इंटू 52 इंटू 52, और दूसरे पार्ट के लिए आंसर हो गया 52 P3। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 3 हैज बीन सेलेक्टेड एट ए टाइम, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट्स विल बी 52 P3। yes, let me unmute you, Suvansi. Sir, are we talking about playing cards? Yes, playing cards. Then it cannot be correct because there are 4 cards of same type. Not all cards are different. We have 30 Okay. sets and each set has 4 same cards. Okay. Yes, Tushar. Tushar, Yes, sir. if you want to ask. No, sir. When did I? Acha, raise hand. Okay, sir. Okay. Sorry, sir. I missed No it. issues. Sorry. Just wait. Suvansi, wait 1 minute. Okay, sir. Sorry. You want to ask? Sorry. Yes, sir. Yes.
टेल मी। सर जैसा ही बताया कि सुभाष कह रही कि कार्ड्स में 4 सेम होंगे पर कलर तो अलग होंगे ना सर। ओके कलर अलग होंगे और जो एस स्पेड्स और उसका होता है वो भी चीज अलग होगी, उसमें से कोई भी वही अलग तो हम चीज हो कहते हैं सकती है। 13 सेट्स होते हैं और एक सेट के 4 पत्ते एक ही जैसे होते हैं। आई मीन 4 या 2 साइड रेड होते हैं। ये कार्ड का रंग हमें क्लियर नहीं है बट 2 ही कलर तो होते हैं, चारों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और हर नंबर का, हर एक डिजाइन का 4 पत्ते होते ही होते हैं। ओके चलो एक बार और कोई बोलना चाह रहा है? शशांक, शशांक Hello, sir. बताओ। So I think so. It is all right, sir, because there are 13 cards from 1 to 10, and the Joker, Queen, King, and Ace, and every card is of 4 different types. One is of club, one is of Ace, one is of diamond, and one is of hearts. So there ओके are 4 different cards for any card. Like for 2, there are 4 different cards: Ace, club, diamond, hearts. So all of them are different, sir. ओके If there would have been a condition like the card number like number 2 is same for all, then we would have divided it by 4. But in this case it is not specified, so all cards are different, so it is all right. So you are saying that the answer is correct for A part. Yes, sir. So both of the parts, Okay, sir. both of the part. Okay. Actually, I Anyone am else? confused in second part, not Okay, in just first part. okay. 1 minute. Anyone else you want to ask? Then after I will It's conclude. different, no? Anyone else? Vishal. Yes, Vishal. सर ये पूछना क्या चाह रहे हैं शुभांशी और तुषार, मुझे समझ नहीं आया। इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शुभांशी या जो भी है इनका कहना ये है कि ये जो कार्ड्स हैं वो 13 एक टाइप के होते हैं। Yes, तो sir. शुड वी डिवाइड इट बाय 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आई थिंक 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। सर ऐसा तो हम जब करते जब हमें बोल रखा होता कि डायमंड का निकालना है, एस का निकालना है, हमें या तो बस कार्ड निकालना है, किसी का भी हो वो तो। ओके अच्छा चलो ठीक है। और कोई बोलना चाह रहा है इसमें कुछ? वर्तिका। ओके वर्तिका यू कैन से। सर 13 कार्ड सेम रहते हैं लेकिन सर उसमें भी डिफरेंट रहता है सर, 1 2 3 ऐसे करके। ओके वो सर सेम थोड़ी ना होंगे उसमें। बिल्कुल। तो एक भी कार्ड सेम नहीं होता, किसी का एक नंबर भी कार्ड डिफरेंट सर तो किसी सेम का नहीं होता है, टाइप सारे डिफरेंट है। डिफरेंट ही होते हैं। सारे डिफरेंट ही होते हैं। ओके चलो मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। ओके तो आई थिंक आफ्टर दैट इट विल बी क्लियर। अगर क्लियर नहीं होता तो फिर से आप रेज हैंड कर सकते हो, ठीक है? तो मैं पहले आपको लोअर हैंड कर देता हूँ सो दैट इट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब। Yes. Okay. So what we are asking in the first part here, we are simply saying that we have to select 3 cards out of 52 card deck. ठीक है? तो 3 कार्ड सेलेक्ट करने के लिए विथ रिप्लेसमेंट है, यानी हर बार हम वापस उस कार्ड को डेक में डाल दे रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए आंसर होगा 52 इंटू 52 इंटू 52। देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है? अब अगर इसमें यह पूछा गया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग दिस टाइप ऑफ कार्ड, जैसे मान लो मैंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग एस और पिकिंग हार्ट, ठीक है? तो उस केस में हम टाइप देखते हैं। अभी हम टाइप नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिंपली 3 कार्ड सेलेक्ट करना है। और जैसा कि कुछ लोगों ने इसमें सबमिशन भी दिया कि हर एक कार्ड अलग होता है, ठीक है? तो कुछ कलर में सेम होते हैं, तो अगर हम कलर की बात करें तो कलर का सेट होता है। अगर हम वो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो एक अलग सेट होता है कि वो हार्ट है या वो एस है या स्पेड है या जो भी हम बोलते हैं उसको, ठीक है? तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। यहाँ पे हमें सिंपली 3 कार्ड सेलेक्ट करना है और एवरी कार्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, ठीक है? 52 के 52 कार्ड को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके आप डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पहला का ये एक कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 कार्ड
एकदम डिट्टो सेम हो, किसी ना किसी तरह से वैरी करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिपीटिशन वाला एग्जाम्पल नहीं लगता। गॉट दैट? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी हैव टू सिंपली चूज 3 कार्ड्स। वो किस कलर के हैं, किस टाइप के हैं, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड वी कैन सिंपली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑल द, सॉरी, among all the 52 cards. That's why this is not the problem of repetition. Okay, the okay, in B part we are saying without replacement, and as I have told you, whenever we are doing without replacement means we are concerned with R permutation, and that means what? Out of 52 we have to select 3 at a time, okay, and this will be 52 P3, and therefore the answer will be 52 into 51 into 50, क्योंकि पहला जो कार्ड आप सेलेक्ट करोगे आपके पास 52 अवेलेबल होगा, दूसरा कार्ड जब आप सेलेक्ट करोगे आपके पास केवल 51 अवेलेबल होगा, ऐसे ही आप जब तीसरा कार्ड सेलेक्ट करोगे तो केवल 50 अवेलेबल होगा, and therefore the answer will be 52 into 51 into 50. Okay, so is it clear to you? यस वर्तिका, यू आर करेक्ट। सभी कार्ड्स अलग रहते हैं, आप 52 के 52 कार्ड्स को एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें कॉम्बिनेशन पूछा जाता, जैसे जो 13 के 4 ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि क्योंकि हम 4 चीजें लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एक एस, हार्ट, स्पेड और एक और होता है, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स होते हैं और एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड, यस डायमंड। तो इन चारों के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो अलग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस चीज के बारे में नहीं पूछा गया। इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी आर सिंपली कंसर्न विथ सेलेक्टिंग 3 कार्ड्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट थिंग हैज नॉट टू बी included here, and therefore this will be the answer. Yes, still any doubts you can ask anyone. Anyone having any queries? So we can proceed for club. I don't have idea about this club. What is this? मैंने तो 4 ही सुने हैं, आई थिंक स्पेड, हार्ट, एस और ये डायमंड, यही 4 होते हैं ना। Not getting what is club here. Yes, club चिड़ी, ओके शशांक, उसी को तो मैं स्पेड बोल रहा हूँ, आई थिंक। Okay, that is there is no need to go in that detail. So Tanya, I'm unmuting you. Yes, Tanya. So what is the difference between pack and deck of cards? I am little bit confused in that. So Okay. pack of cards and deck of cards. जब भी हम पैक की बात बोलते हैं तो हम एक कॉम्बिनेशन की बात बोलते हैं, यानी कि 13 की बात बोल रहे हैं, ओके। whenever we are saying pack we are talking about 13, whenever we are saying deck we are talking about 52. So this is the difference of pack and deck. Got it? पैक मीन्स ओनली वन कॉम्बिनेशन, उसको हम पैक बोलते हैं, और डेक का मतलब 52, ऑल 52। ओके तान्या,
यस तान्या. नो सर, आई थिंक वो कुछ शफल से रिलेटेड होता है सर, थोड़ा बहुत याद है 12th का. आई थिंक वो कुछ शफल से रिलेटेड होता है कि अगर शफल है तो शायद से पैक या डेक कुछ ऐसे होता है. नहीं, अगर मैंने कार्ड जहाँ. शफल करके रखा था. ओके ओके, मैं इसको देख के बताऊंगा फिर. मुझे भी जहाँ तक मुझे याद था, मेरे हिसाब से यही था कि डेक का मतलब होता है कि ऑल 52 और पैक का मतलब होता है वन टाइप. ओके. और अगर आप सफल्ड या अनसफल्ड की बात कर रहे हो तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इस कार्ड्स के बारे में. ओके. ओके. मैं इसको एक बार चेक करके बताऊंगा. एनीवन एल्स? So we can take here one more problem before stopping. Let us say this one. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जल्दी से मुझे आंसर बता दो कि क्या होगा. After that we can stop. Yes, find the number of distinct permutations that can be formed from all the letters of each word. Yes, tell me what is the answer for A part. Anyone? Answer for A part. Yes, it is 5 factorial, क्योंकि ये जो 5 वर्ड्स लेटर्स हैं, ये सभी क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं. THOSE, ये सभी जो हैं डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. तो देयरफॉर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी 5 फैक्टोरियल. तो फर्स्ट का आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल. गॉट इट? सेकेंड का बताओ. सेकेंड. तो सेकेंड वाले में देखो, यू जो है 3 बार आ रहा है. और कोई रिपीट हो रहा है क्या? NSAL. ओके, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है. और टोटल कितने लेटर्स हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7. तो आंसर विल बी 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है. तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो भी आए. This will be 7 into 6 into 5 into 4 into, yes, into 4. 7 into 6 into 5 into 4. The answer will be whatever you are getting. Okay. So this is the way for solving this one. Now tell me what is the answer for third part? C part? Yes, C part. तो कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 लेटर्स हैं. तो 12 फैक्टोरियल. और रिपीटिशन क्या क्या है? तो O जो है 3 बार आ रहा है. L जो है 2 बार आ रहा है. I जो है 2 बार आ रहा है. और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? तो 3 3 2 और कुछ भी है? यस. ठीक है. तो आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्योंकि 3 चीजें रिपीट हो रही हैं. कौन कौन सी? O 3 टाइम्स, L 2 टाइम्स और I 2 टाइम्स. ओके शुभांशी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर सी भी रिपीट हो रहा है 2 बार. अच्छा, सी भी है. ओके ओके, हाँ सी भी रिपीट हो रहा है. तो एक और 2 आ जाएगा. ठीक है. तो देयरफॉर द आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एक और 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. यस. ठीक है. तो O 3 बार है, L 2 बार है, C 2 बार है और I 2 बार है. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. ओके. Any queries up to here you can ask, otherwise we can stop here. Anyone? Okay. तो हमें 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इससे डिवाइड करना है. ओके.
Okay, that's all. We will meet in the next class. Thank you very much.